Hello students, I Dr. Dharamveer Kumar Sinha with you, and today's topic is nutrition in bacteria. In previous class we has been already read about a structure of prokaryotic cell. Okay, so now we know about nutrition in bacteria. You know nutrition is of two types: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, livings make their own food themselves, while in heterotrophic nutrition, livings cannot make their own food and depends upon other for food. Okay, so in bacteria there are two methods of nutrition: autotrophic and heterotrophic. You know the definition of both. Okay, autotrophic nutrition may be phototrophic or chemotrophic. It means the bacteria in which autotrophic nutrition occurs, called autotrophs bacteria, which is of two types. दो प्रकार का होगा. One is chemo autotrophs and photo autotrophs. Chemo autotrophs and photo autotrophs. In chemo autotrophs, in chemotrophs bacteria, no any photosynthetic pigments are present. Okay, और जब पिगमेंट नहीं होगा तो वह सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और जब सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो फूड कैसे बनाएगा? फूड बनाने के लिए तो एनर्जी चाहिए. इट मीन्स कीमो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया ट्रैप्ड एनर्जी बाय केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, ट्रैप्ड एनर्जी बाय केमिकल रिएक्शंस. कीमो ऑटोट्रॉफ्स नो photosynthetic pigment present. No photosynthetic pigment present, and obtain energy from exergonic chemical reactions. Such as oxidation. Exergonic, a chemical reactions in which energy is released, that is called exergonic chemical reactions, and liberated energy is trapped by bacteria in formation of ATP liberated
energy is trapped by bacteria and used in formation of ATP, used in formation of ATP। अब देखिए, यह कह सकते हैं ATP, फूड भी कह सकते हैं, चलिए कह देते हैं फूड भी, देखते हैं। सपोज दैट X is a compound. X combines with oxygen, converts into XO2 and releases energy. XO2 plus energy, and this energy is used by bacteria in the form of ATP, and with the help of ATP, carbon dioxide and in presence of hydrogen ion, food is formed. Okay, so this is chemoautotrophs bacteria. Chemoautotrophs bacteria, and on the basis of substance that is used by bacteria for energy, the name of bacteria is given. जिससे वह जिस कंपाउंड को एनर्जी लेने के लिए यूज करता है, उसी के आधार पर उस बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। सच एज एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। अभी क्या करेगा, ध्यान दें, इन कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया हाइड्रोजन डोनर कंपाउंड प्रोवाइड हाइड्रोजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ फूड और ग्लूकोज। अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, बट इन ग्लूकोज कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावे कोई ना कोई हाइड्रोजन डोनर कंपाउंड्स होगा, और वही हाइड्रोजन डोनर कंपाउंड एनर्जी देता है, उसी के आधार पर नाम देते हैं। ठीक है, जैसे H2S प्लस CO2 C6H12O6 प्लस S. It means in this reaction hydrogen donor compound is H2S. Okay, so sulfur bacteria, iron bacteria, nitrifying bacteria are the example of chemotrophs. Example: iron bacteria, sulfur bacteria, nitrifying bacteria. These are the example of chemoautotrophs. अब अगर हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात करें, टू टाइप्स, नाइट्राइट बैक्टीरिया एंड
नाइट्रेट बैक्टीरिया, नाइट्राइट बैक्टीरिया एंड नाइट्रेट बैक्टीरिया. Example of nitrite bacteria, Nitrosomonas, and nitrate bacteria, Nitrobacter. Nitrosomonas, Nitrobacter. Nitromonas convert अमोनिया इंटू, यह अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट में, और उस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है नाइट्रेट बैक्टर. ठीक है, तो ये हुआ ऑटोट्रॉप्स का पहला टाइप. सेकेंड टाइप इज फोटोट्रॉप. फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. मीन्स मेक्स फूड with the help of solar energy, and solar energy is trapped, absorbed by pigments. जैसा कि प्लांट में देखें, डेवलप्ड प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड. ओके, so photosynthetic bacteria called photoautotrophs, and in photoautotrophs photosynthetic pigments are present. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट. अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन सा होगा तब हम देखेंगे. बैक्टीरियो क्लोरोफिल. नेक्स्ट बैक्टीरियो फियोफाइटिन. कैरोटीनॉइड्स. स्ट्रक्चर में भी देखे थे. दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया. ओके, and this pigment helps in absorption of solar energy. But in bacteria, non-oxygenic photosynthesis process occurs. Bacteria makes their own food in presence of light, but in this process oxygen is not released, so it is called non-oxygenic process. In bacteria, non-oxygenic photosynthesis occurs. फोटोसिंथेसिस होता है लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है. अब इसका रीजन क्या है? चलिए तो जरा सा आते हैं पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर. सिंपल फोटोसिंथेसिस में तुमने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर
forms glucose plus water plus oxygen. It means in photosynthesis process, water is used as हाइड्रोजन डोनर. हाइड्रोजन को डोनेट करने वाला मोलिक्यूल कंपाउंड है तो वह है वाटर. वाटर H2O, यह हाइड्रोजन को दे दिया, उसके पास बचा ऑक्सीजन और वही ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है. लेकिन इन केस ऑफ बैक्टीरिया, हाइड्रोजन डोनर कंपाउंड इज अदर देन द वाटर. हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं है. अगर वाटर होता तो यह भी ऑक्सीजन रिलीज करता, लेकिन वाटर नहीं होने के कारण यह ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है. और इसका हाइड्रोजन डोनर जो कंपाउंड होता है, या तो वह सल्फर कंपाउंड होगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा. सो हाइड्रोजन डोनर in bacteria is hydrogen donor compounds में सल्फर कंपाउंड हो सकता है, सल्फर कंपाउंड हो सकता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है. सल्फर कंपाउंड में H2S, थायोसल्फेट. इनऑर्गेनिक कंपाउंड एमिनो एसिड्स, fatty acids, etc. These are the hydrogen donor compounds, and with the help of hydrogen donor compound, bacteria takes hydrogen in formation of food. Okay, photosynthetic autotrophs. Bacteria are mainly classified into 4 groups. Purple sulfur bacteria, purple non-sulfur bacteria. टाइप्स अगर देखें तो होगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया. These are the 4 types of autotrophic or phototropic bacteria. Okay. Example, Thiocapsa. Example of purple sulfur bacteria, Thiocapsa. इसका एग्जाम्पल रोडोस्प्रिलम, नेक्स्ट क्लोरोबियम एंड क्लोरोनीमा. क्लोरोबियम, क्लोरोनीमा. ओके, सो दीज आर द autotrophic bacteria. Next, heterotrophic.
cannot make their own food and depends upon other for food, and the bacteria in which heterotrophic nutrition occurs called heterotrophs. And heterotrophs is of three types mainly. Saprophytic, parasitic, symbiotic. Saprophytic, parasitic and symbiotic. फर्स्ट saprophytic देखें. saprophytic depends upon dead and decay material. ओके, अब जरा देखें कि सैप्रोफिटिक में डेड और डीके मटेरियल को लेता है ये, तो क्या इसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है? नहीं होता है. तो डाइजेशन होता है, लेकिन वह बॉडी के बाहर होता है. इट मीन्स सैप्रोफाइट्स रिलीज एंजाइम on decay material, dead material, and after solubilization absorbed by bacteria. पहले एंजाइम को बॉडी से बाहर निकालता है, उस एंजाइम के हेल्प से डेड और डीके मटेरियल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, और जब वह सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है तब वह बैक्टीरिया के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. और वैसा बैक्टीरिया जो सॉल्युबल फॉर्म में फूड लेता है उसको ऑस्मोट्रॉप्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑस्मोट्रॉप्स. बैक्टीरिया that absorb food in soluble form. It means saprophytic bacteria are also called osmotrophs. Okay. Next, saprophyte may be obligate, facultative. May be obligate and facultative. Obligate means compulsory. It means bacteria that spends its life only in saprophytic form. That is called obligate. And bacteria that spends his life in saprophytic form, but in absence of food depends upon host that becomes parasitic. That is called facultative bacteria. Okay, so always remains saprophytic. Always remains saprophytic, called obligate. Example, Bacillus vulgaris.
and facultative generally saprophyte, but in absence of food it becomes parasite. जनरल वे में वो सैप्रोफिटिक है, लेकिन जब फूड का स्कार्सिटी होता है तो वह पारासाइटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसका नाम देंगे हम फैकल्टेटिव। एग्जाम्पल सूडोमोनास बैक्टीरिया। एग्जाम्पल सूडोमोनास बैक्टीरिया। ओके, ये हुआ फर्स्ट टाइप सैप्रोफाइट। अब अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें, सेकेंड टाइप इज parasitic. Second type is parasitic. Depends upon host for food and shelter. जो फूड के लिए, शेल्टर के लिए डिपेंड करेगा होस्ट बॉडी पर, उसका नाम देंगे हम पारासाइटिक। पारासाइटिक का भी दो फॉर्म हो जाएगा, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मीन्स ऑलवेज प्रेजेंट इन पारासाइटिक फॉर्म, हमेशा पारासाइटिक फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें फैकल्टेटिव का, तो फैकल्टेटिव में है वो पारासाइटिक, लेकिन अगर होस्ट बॉडी नहीं मिलता है तो ऐसे कंडीशन में वह सैप्रोफाइट हो जाएगा। वैसे कंडीशन में वह सैप्रोफाइट हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखें, माइकोबैक्टीरियम लेप्री एंड फैकल्टेटिव माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री ऑब्लिगेट है, यानी वो हमेशा पारासाइटिक फॉर्म में होगा। और हमेशा पारासाइटिक फॉर्म में होने का मतलब है कि वह एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पेशेंट के द्वारा ही जाएगा। लेकिन अगर हम माइकोबैक्टीरियम इट काउज लेप्रोसी, जिसको कि हिंदी में कहते हैं कुष्ठ रोग, सफेद रोग, एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का टीबी, तो टीबी का जो बैक्टीरिया है वह होस्ट के बॉडी में है, लेकिन अगर वह बॉडी के बाहर भी कभी निकलता है, होस्ट बॉडी नहीं मिलता है, तो भी सैप्रोफाइटिक रूप में सर्वाइव करता है, और फिर जैसे ही होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में आएगा वह इंटर कर जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप is symbiotic. Next type is symbiotic. Symbiotic means mutually beneficial relation. Association among two livings. इसमें दो लिविंग्स का एसोसिएशन बनता है और है
mutually beneficial means both are benefited to each other. इसमें दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट ही होता है। देखिए एग्जाम्पल, यू नो राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ होता है? इन नोड्यूल ऑफ लेग्यूम प्लांट। Rhizobium converts atmospheric nitrogen into nitrate that is absorbed by plants, legume plants। वह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके सॉइल में स्टोर कर देता है, जिसे कि फिर लेता है कौन? प्लांट्स। और राइजोबियम को शेल्टर, रहने का जगह, फूड कहां से मिल रहा है? तो लेग्यूम प्लांट से मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज ई कोलाई प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ई कोलाई प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। वह ह्यूमन के इंटेस्टाइन में है। करता क्या है? इन ह्यूमन इट फॉर्म्स विटामिन्स। ह्यूमन बॉडी में विटामिन का फॉर्मेशन करता है, जिससे ह्यूमन को भी बेनिफिट हो जाता है और बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर मिल जाता है। इस तरह से दोनों को बेनिफिट होता है और ऐसे रिलेशन का नाम देते हैं सिम्बायोटिक। तो अब तक हमने देखा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का 2 टाइप, कीमो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉपिक का 3 टाइप, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज respiration in bacteria. Next is respiration in bacteria. Bacteria may be एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक मीन्स रिस्पायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रिस्पायर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक और एनारोबिक दोनों को 2 पार्ट, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेटरी में डिवाइड किया जाता है। ये फैकल्टेटिव भी हो सकता है, ऑब्लिगेटरी भी हो सकता है। ठीक है ना? तो देखें, अगर हम कहें ऑब्लिगेट एरोब्स, फिर हो गया ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स। देखिए, ऑब्लिगेट एरोब्स मीन्स ऑलवेज सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वह सर्वाइव नहीं करेगा। एग्जाम्पल,
बैसिलस सबटिलिस। Bacillus subtilis is an example of obligate aerobes. Next, obligate anaerobes. Clostridium botulinum. It also causes botulism disease in human. Okay. Next, facultative aerobes means facultative, mainly that are anaerobic, but in presence of oxygen that acts as aerobes. है वो एनारोबिक, बिना ऑक्सीजन में सर्वाइव करने वाले, लेकिन अगर कभी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाता है तो एरोबिक भी हो जाता है, जिसका नाम एग्जाम्पल है रोडोबैक्टर। ओके। नेक्स्ट, फैकल्टेटिव एनारोब्स मेनली आर एरोब्स। फैकल्टेटिव में मेनली वह एरोबिक है, लेकिन ऑक्सीजन के स्कार्सिटी में वह कभी कभी एनारोबिक भी हो जाता है। तो नाम देंगे, इसका एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी that causes tetanus disease in human. ओके। तो आज हम लोग बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन देख लिए। अब बैक्टीरिया में दो टॉपिक, एक रिप्रोडक्शन और दूसरा रोल जानना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।